پڑھنے لکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور نہ کچھ کرنے سے، بلکہ فضل سے ہوتا ہے، اس کی مہربانی سے، اور اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو عطا کیا جاتا ہے۔ شریعت اور طریقت کیا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم؟ یس، ضرور۔ شریعت جسے کہتے ہیں میرے اپنے ایک راستہ ہے، اور طریق کے معنی اختیار کرنے کے، جو آدمی اختیار کرتا ہے اس کو اسے طریقہ جو ہے، جو طریق کو بلکہ ہی طریقت کہتے ہیں اختیار کرنے والے کو، جو عمل کرتا ہے قولاً و فعلاً اپنے راستے میں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اور معرفت جسے کہتے ہیں، حقیقت ایک شے ہے، اور معرفت جو وہاں تک پہنچتا ہے، جو کچھ حاصل کرتا ہے، اسے معرفت کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں اور چاروں ساتھ میں اٹیچ ہیں۔ پھر وجہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے؟ ہاں، ٹکراؤ تو جہل کی وجہ سے ہوتا ہے، علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں دونوں لوگ، اس لیے ٹکراؤ۔ یہ معرفت اور حقیقت کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ ترک۔ دنیا کو جب ترک کرتا ہے تو آخرت کے لیے سفر کرتا ہے، آخرت کے لیے۔ تو یہ وہ مجاہدہ ہے، چھوٹی چیز کو چھوڑنے کے لیے بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیز چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کو جب وہ کی طرف سے بھیٹ کرتا ہے تو آخرت کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن یہ راستہ ایسا ہے تصوف کا، کیونکہ یہ لوگ آخرت کی طرف سے بھی پیٹ کرتے ہیں اور دوست کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ایک مرد کامل کے لیے کون کون سی باتیں ضروری ہیں؟ اسے چاہیے کہ علائق اور خلائق سے، جیسے ظاہر کا معاملہ یہ ہے کہ انسان وہ خصوصیات حمیدہ جو ہے، خوبیاں جو ہیں، یا رضائل ہو یا فضائل ہو، دو ہی چیز پر بیس کرتا ہے۔ جب فضائل اس کے اندر خوبیاں آ جاتی ہیں، فضل ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا، اور اسے توفیق حاصل ہوتی ہے، وہ باللہ توفیق، اس کے فضل سے یہ توفیق حاصل ہوتی ہے، تو وہ راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کو جو بہتر نہیں ہے سب کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس کی طرف جانے کے لیے۔ ایک شیخ میں کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ اوصاف جو ہے چونکہ اپنے آپ نہیں حاصل ہوتے ہیں بغیر فضل کے، مہربانی کے، اس کو تمام ان چیزوں سے جو روکنے والی ہیں اس کی طرف جانے کے لیے ان سے سب سے دور ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ پورب چلیں گے تو پچھم سے دور ہو جائیں گے، جب اچھائی طرف چلیں گے برائی سے دور ہوں گے، تو ان تمام برائیوں سے دور ہو جائے گا، اور اس کے پاس جانے سے سکون آپ کو حاصل ہوگا۔ اور جو پہلے جہاں کے پاس آپ پہنچیں گے تو ان سے تکلیف پہنچے گی، جب اس کے بعد پہنچیں گے صحت کی پیڑھی پہچان لیے تو اس سے سکون ملے گا، خدا یاد آئے، جہاں جانے کے بعد خدا یاد آئے وہی۔ یہ نفس امارہ کو کیسے قابو میں کیا جائے؟ نفس کئی چیزوں پر مبنی ہے، ایک تو لوامہ ہے، اور جو ہمارا ہے وہ حلال زہر ہے، اور مومنوں کا جو نفس ہوتا ہے وہ لوامہ ہوتا ہے، یعنی خیال آیا اور اس نے توبہ کی اور راستے پایا، لیکن ہمارا جو ہے حلال زہر ہے، بالکل یہ ہلاک کرنے والا سامان ہے۔ اور مطمئنہ جو نفس ہے وہ بلد میں اولیاء کا ہوا کرتا ہے اور اس کے پھل سے مطمئن ہو جاتا ہے، بس۔ تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ لذات کو ترک کرنا اور نفوس کو ادب سکھانا اپنے، اور خلوت اور جلوت کو اپنی ایک کر دینا، خلوت اور جلوت میں دونوں میں ادب سکھا دینا نفس کو، یہی کیا کہہ رہے تھے جی؟ تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ یہ ہے، تمہیں لذات سے جو اس کے معنی ہوں، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہوں، اس سے دور ہو جانا۔ یہ بیعت کیوں ضروری ہے؟ قرآن کے بارے میں تو پتا ہوگا آپ کو اچھی طریقے سے، اور قرآن کی شاہد ہے پوری طریقے سے کہ ہم نہیں لی بیعت پہلے لی، ید اللہ فوق یدہم، جب ضرورت پڑی تو کہا کہ جس طرف سے نیچے بیعت دی انہوں نے کہا یہ ہاتھ ان کا نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے، تو شاید کا ہاتھ اس کا ہاتھ کہلاتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ طائف ہونے کی
और तौबा के लिए इसलिए हुक्म भी दिया गया है कि कि तुमसे जब कोई खता हो हिसाब हो तो चले जाओ। रसूल के पास दरबार में ये बताया कि आप जाकर के ताइफ हों, वो सफ़ी ठहरावें, वो सफ़ी ठहरें तो हम माफ़ कर देंगे, अल्लाह ताला ये कहता है। इसलिए ज़रूरी है तवस्सुल का मामला, तो साहिब निस्बत होना ज़रूरी है। बगैर इसके राह कोई नहीं है, रास्ते बगैर शायद के कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं हुब्बे दरवेशा किलीदे जन्नतस, दुश्मन ईसा सदाए लानतस। औलिया की दोस्ती जो है बहस की कुंजी और उनकी दुश्मनी जो है लानत का सजावार होना। दूसरे कहते हैं हर वली रानू कस्सी बासिनास सोहबते ही खल करा तूफा सिनास। कहते हैं हर वली जो है मानी नू कस्सी के है और खल्क मानी तूफान के गिरी हुए, बगैर उस पर आए हुए अमन नहीं मिल सकता उसको, सुकून नहीं पहुंच सकता, इसलिए बेहद जरूरी है। रूहानी कसाफत को दूर करने के लिए क्या तरीके इख्तियार किए? रूहानी जो मामला है उसमें कसाफत ही नहीं है, लताफत ही लताफत है। और दुनिया की कसाफत दूर करने के लिए क्या करना चाहिए वो पूछे। क्या कहते हैं? क्योंकि इस मिट्टी पानी में जो नक्श है और जो तिरगी है उसको दुरुस्त करने के लिए उसका मुजाहिदा है, मुशाहिदा है। बगैर मुजाहिदे के मुशाहिदा नहीं है, इसलिए उसके जिक्र से ही वो दूरी होती है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए उसका मुजाहिदा है, मुशाहिदा है। बगैर मुजाहिदे के मुशाहिदा नहीं है, इसलिए उसके जिक्र से ही वो दूरी होती है। तो उसका जिक्र बुलंद किया जाए। कहते पास दारान पास है लेखरत तातुराई काफिला मंदिर भरत। वासन पास ही ऐसा सामान है जो मंदिर तक पहुंचाने वाला है, जो उसका जिक्र है सांसों से गाफिल ना हो, अपने आप से जब गाफिल नहीं होगा तो मेहरबानी होगी उस पर। भैया इस्लाम का बुनियादी फलसफा और पैगाम क्या है? इस्लाम का बुनियादी मामला जो है लफ्ज़ तौहीद पर है, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कि तमाम उन चीजों को अशिया को छोड़ देना बल्कि ने उसके खातिर में और ईमान ले आना उस पर बल्कि में, ये बुनियादी पैगाम है। और खल्क के साथ सिला रहमी इसका बुनियादी मामला है। और उनके नफ्स को न देख करके उनके साथ मेहरबानी रखना तवाज़ो है। और सब अपने रब की तरफ से देखना ये हक है। यह बहुत मुसलमान परेशानी की हालत में, इसकी ज़बूहाली की वजूहात क्या है? वो किरदार, लेकिन हम ये नहीं कहते बल्कि ने जिसे आप कहते हैं ज़बूहाली मुसलमानों के लिए। आप मुसलमान होना क्या क्राइटेरिया है मुसलमान होने का? आप मुसलमान कहाँ से हैं जिसके लिए कह रहे हैं, तो कहीं से साबित नहीं होते। लेकिन अगर और कोई मुसलमान जो है वो कभी भी परेशान ना हो सकता, ना परेशान है, ना हिरासा होता है, ना कभी हिरासा होता है, ना कभी ना उम्मीद होता है मेहरबानियों से। वो मुसलमान ही नहीं जो ना उम्मीदियों से बिलखने अंदर घिर जाए वो। और रंजीदा जो होता है हम उससे भी कुफ्र समझते हैं हम लोग। तो अहले तरीकत जो है कि रंजीदा भी हम नहीं होते हैं जब वो मेहरबान है मेरे साथ में, तो मुसलमान ही नहीं समझते उसे जो परेशान है। जब उससे दूर होगा तभी परेशानी होगी। याद से हटना ही कदा कदा की समझे मौत है, न कि में बोझ जो है वो लानत है इंसान की। और जब उस कुदरत से दूर होगा तो लानत है उसके, तो लानत है तो ईमान कहाँ है? लेकिन मुसलमानों के सामने आज सबसे बड़ा मसला कौन सा दरपेश है? मसला उससे रास्ते से हटे हुए हैं और कोई बात नहीं। वो अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने ईमान को मजबूत करें और ईमान को मजबूत करें और मजबूत करें, हमें मेहरबानी हो जाएगी। कुछ आजकल के हालात पे भी हम बात करेंगे अगर इजाजत। देखिए यह तो तसूफ पर आप गुफ्तगू न करते या दुनिया के हाजरात पर बात करते हैं। आप उससे अच्छा जानते हैं, दुनिया जो है ये तो हो गया दौर हाजरा को आप बेहतर जानते हैं, इसलिए बात करिए तो तसूफ की करिए, दूसरी ना करें। हालात ये हैं कि अपने अमल को दुरुस्त करें और अल्लाह की मेहरबानी हासिल करें। हालात ये हैं कि अपने अमल को दुरुस्त करें और अल्लाह की मेहरबानी हासिल करें। और वो बिल्लाह तौफीक, जब उसकी मेहरबानी होगी तो उनको तौफीक भी हासिल हो जाएगी अच्छे रास्ते पे चलने की, और खुश अकीदा भी हो जाएंगे वो। क्योंकि फास्कुल अकीदा बहुत है मुसलमान। सबसे बड़ी मतलब लानत ये है कि उन लोगों से साहिब जो अहलुल्लाह हैं उनसे बहुत दूरी है, इससे दीन से ही दूरी है। ये बहुत बड़ी लानत है। लानत के हमारे यहाँ वो नहीं है लानतान के जो मतलब लानत से हमारे ये दूरी है। और दूर जो है बोध होना
लानत के माने बोध होने के, दूर होने के। जब उसके गले में तौक डाला गया तो दूर कर दिया गया ही नहीं। वो इसके पीछे कुछ राज? देखिए, रमूज का तो ये काम है नहीं जो आप कर रहे हैं इस वक्त में, मतलब अपने जिसे गुफ्तगू करने में। लेकिन चूंकि ये मेरे शेख का दिया हुआ है, उनके हुक्म से मैं पढ़ रहा हूँ, हुक्का ये हुक्म से है, क्योंकि उनसे मिला मुझे, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब नहीं पता इसके अंदर क्या है। खीरी से वालिहाना मोहब्बत है आपको, और इसलिए खीरी को अपना एक मस्कन भी बनाया है, और ख़ास तौर से किला शाही, जहाँ हज़रत सैयद आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमा है। इसकी भैया क्या वजह है? वरना हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, कहीं भी आप, लेकिन खीरी से ही अल्लाह की मेहरबानी से तमाम रास्ते मेरे खुले हुए हैं, मुल्कों। ये किसी शहरों की बात नहीं है, कस्बों की तो छोड़ दीजिए, समझे ना, और उसकी मेहरबानी से, फल से। लेकिन कहते हैं फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तो कई अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जिक्र को हमारा, मैं जिक्र को तुम्हारा। तो चूंकि औलिया का मामला है यहाँ भी, बल्कि ने चूंकि सैयद साहब का मामला ऐसा है कि उन्होंने चाहा, और उनकी चाहत की वजह से मैंने भी चाहा उनको, इसलिए मौजूद हैं आपके पास में, समझे। और इसमें खालिस किसी कस्बे का, हिसाब का या लोगों का मामला नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों का मामला है, उनके तस्वीरात की वजह से मैं ठहरा, जो हकीकत है। और ये तो जाती है, जिस्मानी है, एहसाब है, जो रूहानी ताल्लुक है, उसके वजह से मैं ठहरा इस जगह पर। और ये हो सकता है कि पहले से लिखा हुआ हो, हो सकता क्या हकीकत यही है, और यकीन भी यही है। तो वो जो किताबत अल्लाह ताला की तरफ से है, वो अपने उसके अंदर मौजूद होगा कि हमारा ये वक्त यहाँ गुजरेगा, और वो गुजर रहा है। कितना अर्सा हो गया खीरी में तशरीफ लाए हुए? करीब 63 से मैं आया अपने। 64 में मैं महफिल वगैरह में, वहाँ पर मखदूम से सैयदपुर साहब रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में गया था, 64 में या 5 में, समझे। तो मैं उसके पहले निकलता था सफर में, रहा वतन में, तब से वहाँ आया। उसका बस्ती के बाद में इधर आपको पता है उसका जी। नहीं है तो अपने गुरुवार से मालूम होगा जी। तो मोहब्बतें जो है, बल्कि में मोहब्बत तो किससे की जाए तो सब नाकिस हो जाता है मामला, उसके अलावा किसी से मोहब्बत ही नहीं की जा सकती। मोहब्बत का आहल होना भी जरूरी है जिससे चाहत की जाए, समझे। तो चूंकि इन लोगों ने चाहा, ये नहीं कहते हमने इनको चाहा, समझे, तो मैंने इनको चाहा। फिर जो इंदा या बिंदा, जो तलाश करता है वो पाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो जिसने पाया उसने तलाश किया, और जिसने देखे नहीं वो क्या तलाश करेगा। वैसे कहते हैं, कौल ये है कि जो इंदा या बिंदा, जो तलाश करता है वो पाता है, लेकिन नहीं, जो पाता है वही तलाश करता है। हमारा उनसे राब्ता था और है और रहेगा। अब कब से है इसकी वजाहत नहीं करेंगे। भैया शब बेदारी का एक सिलसिला काफी दिनों से, हाँ, मैं सब बेदारी क्या बोल में वहशत है, समझे, और वो किसी की अता की हुई होती है बल्क में। हालांकि हिरन के अंदर, उसके अंदर खुद नाफे मौजूद होता है, लेकिन वो दौड़ा दौड़ा घूमता है उसी की तलाश में। तो मैं जब से गद्दी पर मुझे बैठाला गया वहाँ, क्या उम्र भैया, उम्र शरीफ 3 साल हो या 5 साल होगी, मतलब 3 साल करीब समथिंग होगी बल्क में। उसके बाद से मैं महफिल में बैठा रहा था, अंदर जगता था। और चूंकि मुझे 2.5 साल का था, उस वक्त से जिक्र कराना शुरू किया बुजुर्गार ने। तो उस वक्त के बाद से मैं जो जगना शुरू किया, तो अब तक की बलखने में रात मेरे पास नहीं आई। बीमार भी हो, हिसाब भी हो, जिसे होता है जिस्म के एतबार से, अपने बसरियत के लिहाज से, तो वो भी मैं जगता हूँ पूरी रात, समझे। अगर घंटा 2 घंटे मुझे मिल जाएं तो बहुत ज्यादा है, बस समय इत्तेफाक से मेरी सारी उम्र मैंने करीब इसमें गुजर गई। तो उन लोगों को जो 40 साल जगे हैं, उनका भी रिकॉर्ड मैंने तोड़ा जगने। हाँ,
जो सबसे ज्यादा तरीकत के लोग जगने वालों में से थे लोग मेरे, हमने उनको मैंने जगने में और बेदारी के लिहाज से पीछे रखा। हाँ, और कुदरत की मेहरबानी से, उसके फर्ज से, न कि अपनी सकत से। जिस्म कि जिस्म तो कमजोर है, नातवा है, और इसके अंदर मजबूती जो है उसी तरफ से आती हर आन वाहिद में, तो उसी की मेहरबानी ने मतलब ये किया मेरा हाल। बकौल हजरत अली करमला वजू के तो कहते गो की जिस्म मिट्टी का है, तबाह हाल है, और मिट्टी की वजह से ये बाग बन गया। उसकी मेहरबानी ने इसको बाग बना दिया, वरना इसकी कुछ भी कीमत नहीं थी, और उसके फजल ने इसको बाग बना दिया। ये तुम ज़हीन फर्द हो, अपने अपनी बात जो है जो करना चाहो कर सकते हो, तुमको सब इख्तियार है। भैया उर्स जो कुर्ब जवार में होते हैं और हिंदुस्तान के बहुत से उर्स हैं जहाँ पे आप तशरीफ ले जाते हैं, खास तौर से वो कौन से ऐसे उर्स हैं कि जहाँ पे आप वो जो सिलसिले के लिहाज से या वो तमाम सलासिल ही है का सिलसिला है, ये उर्सों का जिससे निस्बत है और सभी से निस्बत है अपने, तो जहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है अपने जो आस्थाने हैं अपने हिंदुस्तान के तमाम हमारे खास तरीके से, जैसे गरीब नवाज से लगा करके और सैयद साहब का, साहब का और दीगर जो सिलसिले तमाम उर्स पढ़ते हैं, उनमें खास तरीके से मैं जाता हूँ जरूर, और हमेशा ये मेरा मामूल रहा है। हम लोगों का काम ये है कि उर्सों को कराना, करना, समा सुनना और उस पर यकीन रखना है, उस इबादत पर, समझ में, और कुछ लेना देना नहीं है। ये है। और लोगों पे कुछ अब्बा मियाँ के मुताल्लिक इरशाद फरमाएं। वो पैदाइशी थे, वो भी बुधवार जो है दौलत माददात थी जबरदस्त हालत में, और सैफ जबान थे, वो अपने वक्त के राजू कत्ताल थे, वो अजीब गरीब खूबियों के मालिक थे, और हुस्न और इखलाक और हिसाब तमाम चीजें एक जगह पे इकट्ठा हो गई थी, और इल्म और हिल्म, हाँ, वो सब मौजूद था उनके अंदर वाले में। ये लगता था कि वो ये इनके पास इल्म जो है वो हय्यो कय्यूम से हासिल हुआ है, तो बाकी वाला इल्म उनके पास मौजूद था बल्ब में, जिसे बातिल इल्म कहते हैं। इल्म मजलिस का इंतहाई निहायत पर तमाम मजलिसें खामोश हो जाती हैं उनके साथ जाने में, और शख्सियत और जामियत भी ये थी कि वो अगर होते तो कोई भी चिराग उसी के जलता नहीं किसी का उनके सामने, न अजमेर में न बगदाद तक, ये कैफियत थी जिनके लिए हाजी वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ये कहते थे, जब भी मिलते थे वो कहते थे, मियाँ आपका दौर होगा, ऐसा दौर नहीं होगा, और खड़े हो जाते कि आदाब अदाब कह के खड़े हो जाते हाजी साहब। ये कैफियत थी अव्वल में, और आप ही ने उतारा है हाजी साहब को भी अपने काबू में। तमाम दरगाहें और तमाम हिसाब में उनमें इंफरादियत थी उनके अंदर, न उनके करीब में कोई टिक पाता, न हिसाब में कैफियत और मकाम के लाते। भैया कुछ कव्वाली के मुतालिक इरशाद फरमाएं कि आज कव्वाली खानकाहों से निकलकर और वो बाजार तक पहुंच गई, बाजार तक पहुंच गई है, मैं उस पर कोई क्या नाकदरी नहीं है? ये समा का मामला जो है आइन के लिहाज से, हिसाब के लिहाज से, तो वो अहले हक के लिए है, अहले दिल के लिए है समा। अगर कोई साहिब दिल कोई महफिल में मौजूद है तो दुरुस्त, अगर नहीं मौजूद है तो दुरुस्त नहीं है। भैया शोराए कराम में कौन से खास को पसंद हैं? हम पुराने शायरों के मुतालिक अर्ज कर रहे हैं, फारसी के शोराए कराम। रूमी हैं, सादी हैं, हाफिज हैं, और आपके अपने जामी हैं, समझे, ये लोग पसंदीदा हैं मेरे। इराकी हैं, मगरबी हैं, समझे, ये लोग मेरे खास तरीके से कुर्ब में, या मैं इनके कुर्ब में हूँ, वो एक ही बात है।
भैया कुर्ब की बात आई तो कुर्ब इलाही हासिल करने का क्या जरिया है? माँ सिवा उसके निकाल देना तमाम उन चीजों को जो उसके दरमियान में आती हों, ये कुर्ब है। और अपने आप से भी बाहर निकल जाना कुर्बुल कुर्ब है। वो आप नहीं जानते होंगे, इसलिए बता रहे हैं, मतलब में वो करीब से करीब तर है, मतलब में जिससे फनाइयत है तो फना दो हैं, फना और फना होना कुर्बुल कुर्ब है। मैं जबान से उतर करके गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, इसलिए कि वो ओवरहेड करेगी, मतलब में इसलिए जबान को मतलब में एहतियात से ला करके आपका करना है, इसलिए हमको तकल्लुफ होता है उसमें बात करने में। तो उसका कुर्ब जब चाहता है तो दूसरों से दूर हो जाए, कुर्ब हो जाएगा उसका, क्योंकि तौबा जरूरी है आपके। तौबा ताजीज ता मुर्दन है, तौबा के बगैर इबादत तसना है। आप याद रखें कि प्यासी है इबादत भी, तो तौबा जो है, और सबकी तौबाएं अलग है। आशी की सियाओं से, काफी की कुफ्र से, आशी की सियाओं से, और जाहिद की दोस्त से, और इनके दोस्तों की औलिया की बुलंदने जो है करामात और मकाम से तौबा है। तो ये न समझिए कि आपके अंबियाओं की तौबा एक सा है, मैं तौबा की वो बता रहा हूँ आपको कि हुजूर भी 70 बार और 100 बार करते। तो ये न समझ लिया कि आपके मकाम के लिए अच्छे है, इसलिए उनकी तौबा जो है मकामात से, जब अगले मकाम पर पहुंचते बुलंदी के ऊपर, तो उस जगह से तौबा करते जिस मकाम पर थे। माशाअल्लाह, यही ये लोग करते हैं औलिया का, ये अच्छा मामला है। तौबा के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत से कौल हैं लोगों के, औलिया के, साहब के, अंबियाओं के भी। मैं अपनी जबान में मैं गुफ्तगू करता हूँ, सुनने तो अपना कौल कोट करता हूँ इसमें कि तौबा जिसे कहते हैं कि जफा के लिबास को उतारना और वफा के लिबास को पहनना तौबा है। इसी पर कर रहा था वो और शुक्र पर थोड़ी सी गुफ्तगू की मैंने, मतलब अपने तो वही चाह रहे थे कि ऐसे ही कर दिए, आप अपनी तरफ से बताइए। तो हमने कहा उनका शुक्र के बारे में भी, शुक्र चूंकि सब्र और शुक्र जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी सब हालात से भारी हो जाता है, कभी शुक्र भारी होता है। तो हमने कहा उनसे कि नेमतों का अहल ना समझना आपने आपको शुक्र है उसका। ये नहीं कि अल्लाह ताला को जरूरत थी तुमको इसलिए तुमको ये चीज अता की, मेहरबानियां जो की मतलब ने इसलिए कि तुम उसके अहल थे, नहीं। ये खास खवास का मैं बता रहा हूँ, और खास लोगों का शुक्र बता रहा हूँ। आम लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया हो गई। इसलिए नहीं किसी के खल्क की जरूरत है उसको, वो बेनियाद भी है, ये जान लेना चाहिए। आपको वस्तु करें वरना गुम हो जाएंगे आप। नहीं मैं पता नहीं चला। भैया मजहबी असबियत आज बहुत बढ़ गई है, इसके बावजूद ये एक ऐसा मुबारक आस्थाना है, एक ऐसा दरबार है कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब सभी मज़ाहिब और मिल्लत के लोग बहुत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आते हैं और आपसे फैज़ हासिल करते हैं, और जो भी एक बार आता है वो फिर आपका गिरविदा हो जाता है। देखिए, क्योंकि असबियत की बात आपने की जी, असबियत को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, या उसकी अव्वल को जानते होंगे, उसकी निहायत को नहीं जानते। अब इसमें लफ्ज के लिहाज से, लगवी लिहाज से आप जानते हैं उसको, असबियत को, और असबियत को हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं। वो डिसबैलेंस होगा हमेशा जो असबियत रखने वाला है। ये बिरादिक है तो बिरादिक के अंदर चले जाएंगे, बलद में हम लोग नहीं जाएंगे, की बिरादिक है क्या है, इसलिए डिसबैलेंस होने में सवाल पैदा होता है। तो जहां असबियत आएगी वो हक से हट जाएगा फैसलों में, हिसाब में, तमाम चीजों के अंदर। इसलिए बलद में हम लोग हक के लिहाज से ही सबको देखते हैं, उससे अलग नहीं देखते हैं कि जर्रे जर्रे में जो वो है तो उसका एहतराम करना। हम किसी को खराब नहीं देखते, इसलिए क्योंकि मतलब अपने उसका एहतराम करते हैं, मतलब अपने जानते हैं कि मतलब अपने कि अल्लाह के बंदे हैं और जैसे भी हैं समझे। और बरतना वसूलों के लिहाज से और शरीयत के लिहाज से अलग एक चीज है, लेकिन सब हक देखते हैं। इसलिए
जब उनको नफरत से देखा जाएगा तो उनके अंदर भी नफरत होगी, जब आप उनको मोहब्बत से देखेंगे तो मोहब्बत होगी। इसलिए आप जो कुछ देख रहे हैं तो मोहब्बत की वजह से देख रहे हैं। ये कैफियत की एक उसमें बंधे हुए हैं लोग, खल्क जो है इसलिए मौजूद है। बुराइयों से दूर होना अलग एक चीज है, बुराइयों से नफरत करना अलग बात है, किसी जात से नफरत करना अलग बात है। भैया आज जो मदरसों में तालीम मिल रही है वो शदीद होने से कहते हैं, शिद्दत की वजह से जो शिद्दत करेगा वो मजहब से क्या उससे इतना दूर हो जाएगा जैसे कमान से तीर से बाहर निकलता है। इसलिए कल तो भैया का पूरा इंटरव्यू हमारे साथ जनाब मास्टर नूरुल हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आप हजरत सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह दानशी क़िबला के बहुत ही पुराने अक़ीदतमंदों में हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं। मतलब ये बताएं कि भैया से आपका कितना अरसा हुआ है ताल्लुक़? जून सन 63। पहली बार कब मुलाकात हुई, किन हालात में हुई और कहाँ हुई? हम मिट्टी ढो रहे थे तालाब से अपने घर पर, और मियाँ साहब जो थे वो राउंड पर थे तो आए थे घर पर, तो दरवाजे पर नीला कुर्ता सफेद पैंट, जून सन 63। किन बातों से आप मुतासिर हुए? वली के लिए कोई जरूरी थोड़ा की बातें ही सुनी जाए, उनका वली का चेहरा ही बताना, जिसके लिए कबीर ने लिखा है ब्रह्म झलक कर माँ, जिनके चेहरे में नूर झलकने लगता है, जिसके लिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि नूर हक जाहिर बुअत अंदर वली और नेक भी बासी अगर रहे, जिसका चेहरा जो है नूर से भरा हुआ हो तो अपने आप कहने लगता है, उसमें कोई बातों की जरूरत ही नहीं, चेहरे बताने लगता है कि आदमी कैसा। किस दाविया निगाह से देखा है आपने भैया? हमने उनको अपना खुदा, अपना रसूल, अपना सब कुछ मान लिया है। हमने उनको जो है सब कुछ अपना मान लिया है और हम सरेंडर कर, और नाम क्वालिफाइड आदमी थे। हमारे सामने बहुत लोग आए लेकिन हम कभी किसी को जानते थे, सिर्फ मियाँ साहब। हजरत शेख फारूक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूबी स्कूल कायम हुआ है। ये सब 83 से कायम हुआ। भैया की काफी दिलचस्पियां तालीम में भी हैं, तालीमी शोबे में। वही इसके सब मालिक। क्या आज ये जूनियर हाई स्कूल है, इससे मान्यता प्राप्त ये जूनियर स्कूल है। सन 83 से ये कायम हुआ है। सन 86 में 85-86 में इसको परमानेंट मान्यता मिल गई। 83 में ही इसको टेम्परेरी मिल गई थी। 85-86 में इसको परमानेंट मान्यता मिल गई और तब से ये बराबर कायम है और इंटरमीडिएट तक इसको ले जाने का प्लान। कब तक ऐसा होगा? जब इसको जो है ग्रांट आ जाएगी, ग्रांट तक के लिए अभी होगा। मियाँ साहब इसमें सब ये सब चला रहे, सिर्फ मियाँ साहब चला रहे। अकीदतमंदों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो इससे सबक नहीं गलत नहीं भाई। हमारा हम जिस नव रास्ते पर चल रहे हैं तो अकीदतमंद जो भी आएंगे जाकर के वो अपने एंसेस्टर्स का या अपने आयर्स का देखेंगे तो यही कि भाई ये अच्छे हैं या खराब है, क्या है, चलेंगे जाकर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ इस आस्थाने के खादिम और मियाँ साहब के अकीदतमंद, आपके मुरीद जनाब कल्लू बाबा आरफी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी
आप ये बताएं कि आप यहाँ कब से हैं? 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए। अच्छा, भैया से आपकी पहली कब मुलाकात हुई और कहाँ हुई? पहली मुलाकात तो मेरी इंदौर में हुई, वहाँ पहुँचे थे। वहाँ से मैं फिर बड़ा अकीदत बंद हुआ, तो वाकया जो है वाकया बताऊँ, जो वाकया हुआ ऐसा हुआ। बाबा, मैंने कहा चलिए भैया मेरे घर पे चाय की दावत है। तो आपने कहा नहीं, दरोगा जी खड़े हैं, पूरी पब्लिक खड़ी, आपके इंतजार में है, साहब ने झगड़ा था और आप जरूर जाए। तो मैंने होंगे दरोगा वरोगा कोई, मैं नहीं मानता हूँ दरोगा। तो भैया जी ने मुझे भेज दिया। तो भैया जी के पास मैं फिर वहाँ गया दरोगा जी के पास। वहाँ से काम खत्म हुआ तो मैं घर का आया और चाय मैंने 250 ग्राम एक जग चाय बनाई थी। 70-75 आदमी थे उनके साथ में, तो और 250 ग्राम नमकीन। तो वो चाय आपने एक प्याली ले लिया और एक सेनी ले लिया और कहा सबको पिलाया। तो सब पी गए और चाय उसमें भी बच गई। तो मुझे एक मजगा जब हुआ तो मैंने कहा कि दमन हो गया और मैं हो गया और कहा कि ठीक। मैंने कहा मैं साहब बहुत गुनहगार हूँ। कहा नहीं, अब बहुत बिल्कुल ठीक है। उसी तारीख से मैं साथ में हो गया। मुझे बताऊँ जी, आप नहीं सीधा करेंगे फिर? नहीं आप बताएं। आप अकीदा नहीं करेंगे, लेकिन जिस नजर में देखता हूँ वह बाखुदा अल्लाह गवाह है। मेरे लिए अल्लाह और रसूल मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ही को समझा है। बाकी ये है, अब दुनिया वाला कोई मानता हो न मानता हो, मुझसे कोई लेन देन नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं। कोई माने न माने, आप माने या न माने, मैं उनको हुजूर सरकार वालम समझता हूँ बस। और दुनिया के कोई कोने का आदमी मुझे धोस नहीं लग सकता, डरवा नहीं सकता है। क्या ऐसा देखा है कि आप जो है उनको रसूल की हैसियत से माने? हैसियत से मैंने आज से फर्श पे देखा, जमीन पे देखा, आसमान पे देखा। ये वाकया मजमुआ शरीफ का है। मैं खड़ा था, रो रहा था हुजूर की मोहब्बत में। तो मैंने अब ये चेयरमैन साहब, मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, आप बूझ रहे इसलिए बता रहा हूँ, मैं बताता नहीं किसी को। तो मैंने उन आँखों से दिखाए रहे थे जो आंखें मुझे, मैं नीचे देख रहा था आपको और रो रहा था, चाहत बहा हुजूर की मोहब्बत में रो रहा था। जो नाम आता है तो मुझे रवाई की बात है, कुछ सोचता नहीं है। तो मैं रो रहा था, तो ऊपर से मैं देख रहा था आपको, नीचे भी देख रहा था, ऊपर भी देख रहा था। तो जब मैंने आंख उठा के ऊपर देख लिया तो आपने फरमाया कि क्या ऊपर क्या देखते हो? अब ऊपर कुछ नहीं रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। दिखाता रहा, ऊपर जब हमने देख लिया तो कुछ नहीं, नीचे दिखाते रहे। तो ये खूबियाँ हुजूर सरकार दो आलम में थी, जो खूबियाँ आम में थी वही खूबियाँ किताबों से पता चलता है कि वही खूबियाँ मेरी नज़रों में आ रही। जो खूबियाँ हैं मेरी नज़र में आप हैं, दुनिया की नज़र में हो रही है। अच्छा, आप यहाँ क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजार शरीफ जितनी मजार हैं सब मजारों के झाड़ू वाड़ू लगाते हैं और समय दो बांध देते हैं, धनी देते हैं। और पीर आ जाता है तो पीर की भी खिदमत जो नहीं हो सकती, अल्लाह की मखलूक आती है, किसी को फारा डालना, पानी देना, जो भी खिदमत हो सकती है अल्लाह की वास्ते करते हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं दिल्ली से। कुछ इंट्रोडक्शन आप अपना दें। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मेरा दिल था, काफी दिन से पूजा से मिली, 6 साल से नाम सुनता रहा था, मुलाकात नहीं हो पा रही। परसों अचानक हमने प्रोग्राम बनाया और कल शाम को आप पहुँचे। किस पार्टी से ताल्लुक है? मैं पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में रहा, अभी 15 दिन पहले बीजेपी को रिजाइन दे दिया। भैया से आपकी पहली कब मुलाकात हुई और कहाँ? कल मुलाकात हुई। यही पहली कल मुलाकात हुई। आपने किसी से सुना होगा? बहुत जगह सुना, मद्रास में सुना, हैदराबाद में सुना, दिल्ली में सुना, प्यारी भैया हैं, प्यारी भैया हैं। और मुझे एक ऐसे पीर की तलाश थी जैसा मेरा मिजाज है, खुशनुमा आदमी, वो चीज़ मैंने भैया ने पाई। क्या वो साफ आपने सुनी? यही सुना कि साहब अल्लाह वाले हैं और ईमान वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप उनसे मिले, कोई हौसला नहीं है उनके पास, कोई ऐसी बात नहीं। कल वही चीज़ मैंने पाई, कल ही मैं उनसे मरीज हुआ। आपकी मुलाकात हो गई? जी, मैं मुरीद हो गई, कल ही मरीज हुआ। तो बाकी अल्लाह से। पहली नज़र में जब आपने भैया को देखा तो आपको कैसा लगा? क्या उस वक्त के एहसासात क्या थे? देखिए, मैं तकरीबन 50 साल का आदमी हूँ। मेरा ये शौक़ रहा पीरों से मिलने का, मरीजों से मिलने का, दरगाहों पर जाने का। मैं देवबंद में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लोगों को जाता आता हूँ, मेंबर वगैरह भी रहा हूँ। और मतलब कोई जगह छूटी नहीं मुझसे हिंदुस्तान में।
लेकिन जो चीज़ भैया में पाई वो आज तक किसी में नहीं पाई। क्या खास बात देखी आपने? बस कुदरत ही ऐसा लगा कि अगर है कि यही आदमी है जिससे मरीज होने का दिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी करें। मैं अब्बा से बैठ हूँ। इसमें ग्रामी क्या है आपका? मेरा नाम बासित है। मैं मशहूर नहीं रहा, मेरे बाप 65 साल मैं अब्बा के साथ ले गया और दिया का मैं शाही को पर्चा करने को मरीज करवाया और मैं आपने क्या देखा अब अभी तक भैया में? किस दागिए निगाह से आप देखते हैं भैया? तो बचपन से थे तो मेरे आका का बेटा बचपन आपने देखा है भैया का? तो कोई ऐसा वाकया बताएं बचपन का जो आपके जहन पे नक्श हो गया हो, मिटाए नहीं मिट रहा हो। कोई ऐसा वाकया आप भैया के बचपन का बताएं। बचपन में ऐसा था, एक रोज आप बैठे हुए थे तो हमसे बोले क्या चाहते हो? तो मैंने कहा दूध नाश्ता चाहिए। फिर माजिद नहीं थे तो भैया फिर 3 बजे हमसे पूछा, फिर वही मैंने जवाब दिया। फिर चौथी बार पकड़ने से देखा भैया वाजिब भेज रहा होता है और बहुत चारा और बहुत ही की। कुछ अब्बा मियाँ के बारे में बताएं। अब्बा मियाँ की बात क्या बताऊँ, आपकी जबान में तासीर थी, आपके इखलाक और ठाक बात सब शाहाना थे उनके, और क्या मैं बताऊँ। आप भैया को किस दाविये निगाह से देखते हैं? भैया को अपने आका के निगाह से देखता और उनका गुलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम वगैरह? जमाल अहमद। आप कब से यहाँ किले पर? सर भैया से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? सन 63 जून दरवाजे। जब आपने भैया को पहली नजर में देखा, पहली बार देखा, तो उस वक्त आपके क्या ख्यालात थे, क्या एहसासात थे? ऐसा था कि चमक कहाँ पर हुआ, रोशनी का हुआ, इससे हम अटके तो सब लोग भी ऐसी पहली बार एक लाख ने बहुत मुतासर किया और उनका जो लोगों से बिहेवियर था उससे बहुत अट्रैक्ट था। न मैंने कोई करामत देखी न कोई देखा। किस दाविये निगाह से आप भैया को देखते हैं? हम बिल्कुल शक्ल में वो देखते हैं कि अल्लाह का दोस्त है। यहाँ आप हजरत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, जहाँ पर कि भैया भी ने अपना मस्कन बनाया है, तो आप यहाँ किस काम के लिए मामूर फरमाए गए हैं भैया की तरफ से? मुझको यहाँ का भैया साहब ने कहा कि तुमको मैंने इंचार्ज यहाँ बनाया है, यहाँ का तमाम निज़ाम भंडारा जिस जगह बनाने की गाड़ी को देख लेता हूँ। शुक्रिया मतलब आपको। वो तो धरो पहले नीचे यहाँ पे चला। इस वक्त हमारे साथ इस आस्थाने के एक बहुत ही पुराने खादिम, जिनका काम लंगर का एहतमाम करना है, जनाब करम अली साहब आरफी हमारे साथ मौजूद हैं, दानशी। हम उनसे बात कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपकी भैया से पहली कब मुलाकात हुई? हमारे सामने बहुत दिन के भैया का तो आप भैया से बैठे हैं या उनसे? अब्बा मियाँ से मुरीद हैं? बताइए कि हमारे कब हुए थे मुरीद? सकती है और ये उनकी चाहत है और हमने सब कुछ देखा है और सब कुछ हमने पाया है।
آپ ابا میاں کے مرید ہیں؟ جی ابا میاں کا کوئی واقعہ بتائیں اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ میرے پیر کے جانشین ہے اور پیر نے ان کو سب کچھ عطا کیا ہے، پیر نے سب عطا کیا ہے، تو جیسے میرے پیر ہیں جیسے میرے پیر ہیں، ادھر کیمرہ پیش کرو، جیسے میرے پیر ہیں ویسے۔ اچھا یہ جو ہے 15-20 سال۔ اچھا بہت بہت شکریہ آپ کو۔ جناب قاری اسلام احمد عاطف صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ اپنا مختصر سا تعارف دینے کی زحمت گزارا کریں۔ میرا نام ہے اسلام احمد عاطفی اور رہنے والا میں خیر آباد کا رہنے والا ہوں، اور میری جو تعلیم جو ہوئی ابتدائی وہ چھوٹے مخدوم صاحب اللہ دیا رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بسم اللہ ہوئی، پھر اس کے بعد اردو ہندی کی تعلیم ہوئی، تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ چلو بھائی حافظہ شروع کیا جائے، اب اس دینی تعلیم کی طرف رجحان پیدا کیا جائے، تو اس میں سے 4-5 لڑکے ہمارے ساتھی تیار ہوئے۔ بھیا سے آپ کی پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ ویسے تو بچپن میں میاں صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے موقع پر جب آتے تھے تو قلم وغیرہ پڑھوانے جاتے تھے، اور لیکن جب خاص طور سے ملاقات جو ہوئی، جب سمجھداری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو وہ لکھنؤ میں ملاقات کی تھی۔ کس بات سے متاثر ہوا؟ جو ہمارا تعارف کرایا گیا تو بتایا گیا کہ خیر آباد کے ہیں، میاں صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم ان کو جانتے ہیں پہلے سے، اور یہ لوگ آتے تھے قلم علم پڑھواتے تھے، تو اور لوگ مولانا لوگ بھی ساتھ میں تھے، میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو ہم سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے حضرت نے شروع کیا ہے تو قرآن شریف کی آیت سنائیں، تو اس میں ایک مولانا ناظم صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ سورہ نبا سنائیے، تو میں نے سورہ نبا شروع کی تو بیچ میں سکا پیدا ہوا، تھوڑا میں رکا تو اس کے آگے جو ہے میاں صاحب نے وہ آیت مبارکہ بتائی، اسی دن سے میں متاثر ہوا۔ کب آپ مرید ہوئے؟ مرید ہوئے ہم سن 88 میں۔ سن 88 میں۔ آپ بھیا کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب کی شخصیت جو ہے بہت ہی بلند ہے، اور کوئی ناقص کامل کا حال نہیں بیان کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ جو بزرگوں نے جو بتایا ہے اور جو خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہاں جاؤ تو دلوں کو سکون ملتا ہے، تو جب میں پہلی مجلس میں حاضر ہوا تو مجھے جو سکون قلبی حاصل ہوا وہیں سے میں متاثر ہوا۔ بھیا نے آپ کو کس خدمت کے لیے مامور کیا؟ ہم کو جب ہمارا حافظہ مکمل ہوا تو میاں صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارا حافظہ پورا ہو گیا اور قلعے پر ہی جو ہے ہر سال آپ تراویح سنائیں گے، اور پھر مغرب کی نماز کے لیے متعین کیا، 5 وقت کی نماز کے لیے، اور خاص طور سے جس وقت افطار ہوتا ہے اس وقت کے لیے، اور خاص جو معاملہ جو ہے یہ کہ تراویح کے لیے ہم کو میاں صاحب نے یہ خدمت ہم کو انجام دی اپنی مہربانی سے۔ زیادہ تو کوئی سفر کی کوئی بات بتائیں، بھیا رات میں ہی سفر کرتے ہیں، کوئی واقعہ کوئی بات جس کو آپ فراموش نہیں کر سکیں؟ واقعات تو بہت سامنے آئے، لیکن اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے اجمیر شریف سے واپسی ہو رہی تھی وایا دلی سے پھر بریلی آیا، اور بریلی سے پھر جانا تھا، کیونکہ اجمیر شریف سے واپسی کے بعد بہرائچ شریف جانا ہوتا ہے، سلطان الشہداء غازی آباد سے۔ نہیں ہاں وہ اب جب اس کی بلڈنگ بارش ہو جاتا تو چلے ہاں نہیں وہ چھپر دے رہا ہے مطلب واقعی ہے نا، یہ نیچرلٹی جو ہے سب کر رہے ہیں، بہت اچھا، سب اچھا ہے، جو آدمی جو اپنے حوصلے سے کرتا ہے کیا کہ تو اگر وہ ایک گلاس پانی بھی رکھ دے بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے کچھ پرائز میں مطلب نہیں اس کے ہوتا ہے میزبان کے، اس کو بھی پتا
اور مہمان کو کیا چاہیے ان کو کیا کہ دونوں میں سے الگ سب کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں تو ٹھیس نہ لگ جائے آپ خیال خاطر احباب چاہیے ہے نا ٹھیس نہ لگ جائے آپ کو تو وہ آپ جو ہے وہ بھی فرض موجود ہے آپ کو جب کرنا ہی ٹھیک یہ صحیح ہے کیوں کیا پانی اسی لیے سب کو پٹک کر کرتا پانی آپ کو لگانے کے لیے پانی ہے آپ نے کتنا محسوس گرد کی کہہ دیا شہر بھی کچھ کا کہہ دیا بہاری کے ہاں بہاری ہے کتنے سے یہاں کے دوہرے جو ناوک کے تیر دیکھن میں چھوٹے لگے گھاؤ پہ ایک مصرا آپ نے پڑھا ایک میں اسپیڈ میں بڑھاتے ہیں گھماتے ہیں ایک ساتھ میں ٹریننگ الگ ہے میرا تو ہے ادھر دیکھا ادھر اور سب کو لوگوں آ جائے گھوم جاؤ ادھر ایک دم سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 غلط ضربانی پوشتاروں کے غلط ضربانی پوشتاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے پر لیجیے اور چاہیے چھوڑا رہا ہے صاحب لے لو ہاں وہ لیں گے وہ یہ لائیے لے لو ارے دکھا کر آواز نہ کرو کوئی بات سب ہے نکل گئے دیکھ نہیں بٹھا دو سب کو بٹھا دو